Hello learners and welcome back to your own channel LIY English Learn It Yourself. So this is the second part and the second video on the chapter 1.2 On to the Summit We Reach the Top from class 11th English. I'm sure first part आपने देख लिया है. मैंने ऑलरेडी उसे अपलोड कर दिया है अपने चैनल पे. अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. प्लीज़ स्टॉप हियर एंड गो एंड वॉच दैट फर्स्ट वीडियो क्योंकि ये वीडियो कंटिन्यूएशन में है फर्स्ट वीडियो के. तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और चैप्टर हम वहीं से शुरू करेंगे जहां हमने पिछले वीडियो में फर्स्ट वीडियो में छोड़ा था. There is another paper like this in English, signed by me. Thus, we will not take part in any controversy. As the statement says, Hillary and I embraced when we reached the top. We did as well as our bulky equipment would let us. I remember saying to him, "We have done it," but we couldn't hear. We had our oxygen mask on. First thought. My first thought on reaching the top was a sense of gratitude to God, that after having failed 6 times, He had blessed me with the fulfillment of this desire I had held so long. I placed on the summit the offerings to God that I had carried with me. This is in accord with my religion. Both my wife and I are Buddhist. I could not kneel because of my clothes and equipment, but I offered a silent prayer in my heart. इंग्लिश में इसी तरह का एक और पेपर है जिस पर मेरे सिग्नेचर है, इसलिए हम किसी भी विवाद में हिस्सा नहीं लेंगे. जैसे कि बयान में कहा गया है, जब हम चोटी पर पहुंचे तो हिलरी और मैं ने एक दूसरे को गले लगाया. हमारे भारी उपकरणों की वजह से हम जितना गले मिल सकते थे हम मिले. मुझे याद है कि मैंने उनसे कहा था, हमने ये कर दिखाया है, लेकिन हम सुन नहीं पाए क्योंकि हमारा ऑक्सीजन मास्क ऑन था. चोटी पर पहुंचकर सबसे पहले सोच थी मेरा भगवान के प्रति शुक्र की भावना कि 6 बार नाकाम होने के बाद उन्होंने मुझे इस इच्छा को पूरा करने का आशीर्वाद दिया था, जिसकी इच्छा मुझे कई समय से थी. जो भेंट मैं अपने साथ ले गया था उसे मैंने शीर्ष पर रखा. ये मेरे धर्म के अनुरूप है. मैं और मेरी पत्नी ये बौद्ध हैं. मैं अपने कपड़ों और उपकरणों के कारण घुटने नहीं टेक सकता था, लेकिन मैंने अपने दिल में खामोश प्रार्थना की. The offerings were biscuits, candy, and a little blue pencil. My youngest daughter Nima had given me the pencil before I left home. She asked me to put it on the top of the mountains as her offering. It was an ordinary blue pencil, not even a long one, but it was one of her prized possessions. As I put it down, I pointed out to Hilary. He gave me a big smile, showing that he understood. Then I got out the flags which I had on piece of string about 4 feet long. I fastened one end to my ice axe and Hilary took pictures as I held it up. As I had to bring my ice axe down with me, I buried one end of the string in the ice on the top and the other in snow on the slope down below. ये ऑफरिंग थी बिस्किट्स, कैंडी और छोटी नीले रंग की पेंसिल. मेरी सबसे छोटी बेटी नीमा ने मुझे घर से निकलने से पहले पेंसिल दी थी. उसने मुझे ये पेंसिल उसकी भेंट के रूप में पहाड़ी की चोटी पर रखने के लिए कहा था. ये एक साधारण ब्लू पेंसिल थी. ज़्यादा लंबी भी नहीं थी, लेकिन उसकी बेशकीमती चीज़ों में से एक थी. जैसे ही मैंने उसे नीचे रखा, मैंने हिलरी को इशारा किया. उसने मुझे एक बड़ी मुस्कान दी, ये दिखाते हुए कि वो समझ गया है. फिर मैंने उन झंडों को बाहर निकाला जो लगभग 4 फीट लंबे तार के टुकड़े पर लगे थे. इसका एक सिरा मैंने अपनी बर्फ़ की कुल्हाड़ी के ऊपर बांध दिया और हिलरी ने मेरी झंडों को लिए हुए तस्वीर ली. क्योंकि मुझे अपनी बर्फ़ की कुल्हाड़ी अपने साथ भी लानी थी, इसलिए मैंने इन झंडों के स्ट्रिंग को एक छोर को ऊपर बर्फ़ में और दूसरा ढलान पर बर्फ़ के नीचे दफन कर दिया. When we left, they were lying flat against the summit. I was very thirsty. I took out a water tumbler for a drink, but found the water in the metal container had frozen, so I couldn't quench my thirst. I ate some biscuits and offered some to Hilary. I was wearing a red scarf which my great friend Lambert, leader of the 1952 Swiss expedition, had given me last year. It was just a year ago, on May 28th, when we were standing at 28,215 feet, that he gave me the scarf. I wore it all the way up the mountain from Darjeeling. As I stood at the top, I remembered him and felt that he was with me. I felt absolutely fit at the summit. My mind was absolutely clear.
I didn't feel tired. I felt exhilarated. It was a very clear sensation. जब हम निकले तो वो शीर्ष पर सपाट पड़े थे। मुझे बहुत प्यास लगी थी। मैंने पीने के लिए पानी की बोतल निकाली, लेकिन पाया कि मेटल कंटेनर में पानी जम गया था। इसलिए मैं अपनी प्यास बुझा नहीं पाया। मैंने कुछ बिस्किट खाए और कुछ हिलरी को दिए। मैं एक रेड स्कार्फ पहने हुए था, जो मेरे महान दोस्त लैम्बर्ट ने मुझे पिछले साल दिया था। एक साल पहले 28 मई को जब हम 28,215 फीट की ऊंचाई पर खड़े थे, तब उन्होंने मुझे ये स्कार्फ दिया था। दार्जिलिंग से लेके पूरी चढ़ाई के वक्त मैंने इसे पहन रखा था। जैसे ही मैं चोटी पर खड़ा हुआ, मैंने उन्हें याद किया और मुझे लगा कि वो मेरे साथ हैं। चोटी पर खड़े मैं बिल्कुल फिट महसूस कर रहा था। मेरा मन बिल्कुल साफ था। मुझे थकन महसूस नहीं हो रही थी। मैं बहुत उत्साहित और खुश था। ये एक बहुत स्पष्ट अनुभूति थी। Below, all the hills and mountains looked like gods and goddesses to me. The plains below looked like so many broken pieces of the map. 2 or 3 people could stand there on the roof of the world if you got eyes. 20 or 30 feet below the top, there was enough flat square for 2 people to sleep. You could pitch one tent there. The summit is flat on one side and steep on the other. There is snow on the northern side, rocks on the south and east, and snowy rock on the west. We stayed on the top a little more than 15 minutes. We were lucky that there was no gale, or it would have swept us off. My next thought was how to get down safely. On the descent from the summit, I was walking behind Hillary. नीचे सभी पहाड़ और पहाड़ियाँ मुझे देवी देवताओं के समान लग रहे थे। नीचे के मैदान किसी नक्शे के बहुत सारे बिखरे हुए टुकड़ों की तरह लग रहे थे। अगर आप इस चोटी पर बर्फ़ काटेंगे तो दुनिया की छत पर 2 से 3 लोग खड़े हो सकते हैं। ऊपर से 20 या 30 फीट नीचे 2 लोगों के सोने के लिए काफ़ी जगह थी। आप वहाँ एक टेंट लगा सकते हैं। चोटी एक तरफ सपाट और दूसरी तरफ खड़ी है। नॉर्थ यानी उत्तर की ओर बर्फ़, साउथ और ईस्ट में चट्टानें और वेस्ट की तरफ बर्फीली चट्टानें हैं। हम 15 मिनट से कुछ ज़्यादा चोटी पर रहे। हम भाग्यशाली थे कि कोई आंधी नहीं आई थी, वरना वो हमें बहा ले जाती। मेरा अगला विचार ये था कि सुरक्षित रूप से कैसे उतरूं। शिखर से उतरते वक्त मैं हिलरी के पीछे चल रहा था। आई वॉज फॉलोइंग हिम एंड होल्डिंग द रोप टाइटली, and my determination was to make sure he descended safely. I must say that the climb down was more difficult and dangerous than the climb up. If you slipped down, you would go into Kangsheng Glacier and there would be no trace left of you. More caution needed. Of course, it took less time climbing down, but you needed more husiar, caution. When I reached Camp 9, my first thought was, thank God we have been spared an accident. And if up to now there have been no accidents, I hope there will be none in future. I had always prayed to God, and He had saved me. At Camp 9, Hilary and I were in no mood for any talking. We just attended to our own things. We stayed there about half an hour. We boiled some snow to make lemon water and drank it. मैं उसके पीछे चल रहा था और रस्सी को कस के पकड़े हुए था, और मेरा संकल्प ये था कि वो सुरक्षित रूप से उतरे। मुझे कहना होगा कि चढ़ाई के मुकाबले उतरना ज़्यादा मुश्किल और ख़तरनाक है। अगर आप नीचे फिसल गए तो आप कैंगशंग ग्लेशियर में चले जाएंगे और आपका कोई निशान नहीं बचेगा। ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। बेशक नीचे उतरने में कम वक्त लगता है, लेकिन आपको अधिक होशियार यानी सावधानी की ज़रूरत होती है। जब हम कैंप 9 में पहुँचे तो मेरा पहला विचार ये था कि भगवान का शुक्र है कि कोई भी दुर्घटना नहीं हुई, और अभी तक कोई भी दुर्घटना नहीं हुई है तो उम्मीद है कि भविष्य में भी ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने हमेशा भगवान से प्रार्थना की थी और उन्होंने हमेशा मुझे बचाया था। कैंप 9 में हिलरी और मैं कोई बात करने के मूड में नहीं थे। हम सिर्फ अपनी चीज़ों और कामों में लगे थे। हम वहाँ करीब आधा घंटा रुके। हमने कुछ बर्फ़ उबाली और नींबू पानी बनाकर पिया। When we left, we took only our sleeping bags and left everything else behind in the tent. From Camp 9 to Camp 8, where we spent the night, was an easier job. Just above Camp 8, where the others could see us, I raised my arm with my thumb up. Noise and Lois saw us, and their faces flushed with joy. In this way, I was able to tell them of our success.
As we got nearer to Camp 8, Laue came to meet us and came up about 300 feet with tea and coffee. Another 50 feet down, we met Noyes, who brought us more tea. This tea smelt kerosene. Apparently, it had been made in a hurry, and somehow some kerosene got into the welcome cup. But I thought since the gentleman had taken so much trouble to bring it, I was going to enjoy it, whatever the smell. Tenzing Norgay from Archives of Times of India. जब हम वहां से निकले तो हमने सिर्फ अपने स्लीपिंग बैग्स लिए और बाकी सब कुछ टेंट में ही छोड़ दिया। कैंप 9 से कैंप 8 तक जाना एक आसान काम था, जहां हमने रात बिताई। कैंप 8 के ठीक ऊपर जहां दूसरे हमें देख सकते थे, मैंने अपना हाथ थंब अप के साथ ऊपर उठाया। नॉइस और लावे ने हमें देखा और उनके चेहरे खुशी से चमक उठे। इस तरह मैं उन्हें अपनी सफलता के बारे में बता पाया। जैसे ही हम कैंप 8 के करीब पहुंचे, लावे हमसे मिलने आया और 300 फीट ऊपर तक चाय और कॉफ़ी लाया। एक 50 फीट और नीचे हम नॉइस से मिले, जो हमारे लिए और चाय लाया। इस चाय से मिट्टी के तेल की गंध आ रही थी। ज़ाहिरी तौर पर इसे जल्दी में बनाया गया था और किसी तरह कुछ मिट्टी का तेल इस वेलकम कप में गिर गया था। लेकिन मैंने सोचा कि चूंकि इस सज्जन ने इसे लाने में इतनी परेशानी उठाई है, इसलिए मैं इसका आनंद लूँगा, चाहे गंध जो भी आए। So learners, this is the end of this interesting chapter। और इस चैप्टर में हमने इतिहास रचने वाले शेरपा तेंजिंग के बारे में काफ़ी कुछ जाना और काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिलता है उनसे इस चैप्टर में। क्वालिटीज़ लाइक करेज, डिटर्मिनेशन, ग्रेटफुलनेस, डेयरिंग, परसिवरेंस, ह्यूमिलिटी एंड सो मच मोर। तो आपने शेरपा तेंजिंग से कौन सी क्वालिटीज़ चैप्टर के द्वारा सीखी है, प्लीज़ कमेंट में लिख के मुझे बताइए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है, मेरे साथ पढ़ना आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, share among your friends and subscribe to the channel if you haven't done yet. Thank you very much.